A very good afternoon to the student of class UKG. Welcome to your EVS classes. I beg your pardon, welcome to your activity book class. Student, we are going to touch today page number 36 and page number 37. First we will write here page number 36 and page number 37. Okay. So in the previous classes what we have learned about the different letters, we have learned about the words, we have learned about the articles a, an and the. We have also seen where is a and an used. A is used before your consonant and n is used before your vowel, isn't it? And we have also used the article the, okay, for the specific things which is representing one is known as is being represented by the article called the, like for an example, the moon, the book, the clock, the orange, the egg and the ox. Okay, today we will learn how to frame the sentences. Okay, so sentences is been framed with the help of the articles, the helping verb as well as your noun. So we will see here the object has been given here. I mean the noun which has been given here is your mango. So this is a mango which I have already written, and we are going to frame the sentence with mango. So we all know that the children love mango and they relish the sweetness of the mango. So as per the taste, the mango is sweet to taste. So we will make the sentence like the mango is sweet. We can also say the second sentence like the mango is the king of fruit. But we will be reserved with the sentence what has been given in your book. So the mango is sweet. क्या लिखेंगे? Mango is sweet. The 4 lines आपके बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम लोग बस उसको दोहरा रहे हैं यहाँ पे. सेकेंड ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है? The second noun is your train. Is your train. ये ट्रेन का पहला भाग है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? An engine. क्या कहेंगे? An engine. क्यों यूज करना है? क्योंकि ई हमारा क्या है? E is our vowel. Okay, so that is why we are using one. We are using an. So it will be one. An engine, right? So what sentence will make? The engine is black. The engine is black. The engine is black. Is black. इस तरह से हम लोग बना देंगे. The third is what? Import. I is your vowel. So what do we write here? An import. An import. Okay. और इसको सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आपकी बुक में लिखा हुआ है the import is blue. It can be black also. Okay. That is up to you what you write, but will be reserved with the sentences what has been given in your book. So the import is blue. The import is blue, right? देखिए कैसे कैसे हम लोग ने सेंटेंस बनाया, छोटे छोटे सेंटेंसेस. नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आपको क्या लिखा हुआ है? एन ऑरेंज. एन ऑरेंज. यहाँ पे क्या लिखेंगे? एन ऑरेंज. ओ हमारा वावल है. ओ इज आवर वावल, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे. ओ इज आवर वावल. वी कैन अंडरलाइन हियर. So as I was our vowel, so we have used N here. E to we have seen only, it was a vowel, but N is what? Is your consonant. So we have used here one. We have used E. So an orange, orange का टेस्ट कैसा है? खट्टा है, sour कहेंगे इंग्लिश में. So the orange is sour. Orange is sour कहेंगे, या the orange is sour. Okay. So in this way we can say the orange is sour. S-O-U-R. And then you can give a full stop there. After that, an object is of a what? Of a clock. Of a clock. So C is your vowel. So we will write one. A clock. A clock. A clock क्या लिखे? अब इसको कैसे फ्रेम करेंगे? The clock is big. ये वॉल बनी है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? The clock is big. The clock is big. Okay.
ये भी लिख सकते हैं इट इज अ वॉल क्लॉक, लेकिन हम लोग रिजर्व रहेंगे उसी सेंटेंस के साथ जो आपके बुक में लिखी गई है। क्लियर? तो ये है आपका कौन सा पार्ट, पेज नंबर 36। विल कम विद द पेज नंबर 37, बट बिफोर दैट हमें रीडिंग वर्ड कभी बच गई है। तो मैंगो, एक मैंगो, इसको सेंटेंस में कैसे फ्रेम करेंगे? द मैंगो इज स्वीट। ओके, मैंगो मीठा है। उसके बाद एन इंजन, ये पहली भाग है, ट्रेन का पहला भाग को हम क्या कहते हैं? इंजन। ये हमारा यहाँ, ये हमारा वॉवल है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज किए? एन। अब इसे सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे? द इंजन इज ब्लैक और द फ्रंट पोर्शन ऑफ एन ट्रेन इज कॉल्ड एन इंजन। आपके लिए भी ये बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम छोटे छोटे सेंटेंस सिखा रहे हैं और छोटे छोटे सेंटेंस पर ही फोकस करेंगे। नेक्स्ट, एंड इंपॉर्ट। इंपॉर्ट किसे कहते हैं? एक द्वाद की जो बॉटल रहती है उसको हम इंपॉर्ट कहते हैं, जिसमें इंक रहता है। तो इंक ब्लैक भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, या फिर ब्लू भी हो सकता है। ठीक है, तो आपकी बुक में ब्लू लिखा हुआ है तो हम लोग ब्लू पर फोकस करेंगे। एंड इंपॉर्ट, द इंपॉर्ट इज ब्लू। ऑरेंज, एंड ऑरेंज, वो वॉवल है इसलिए यहाँ एन यूज करेंगे। इसकी सेंटेंस कैसे बनेगी? तो ऑरेंज इज सार। ऑरेंज टेस्ट करने में कैसा है? खट्टा है। जिस तरह से आम मीठा है उस तरह से ऑरेंज हमारा क्या है? उसका जो टेस्ट है वो खट्टा है। और क्लॉक, घड़ी हमें इस वक्त दिखाने में मदद करती है, तो यहाँ लिखिए अ क्लॉक शोज द टाइम, ये भी कह सकते हैं, लेकिन ये बड़ा हो जाएगा आपके लिए, द क्लॉक इज बिग। इसी तरह से हम पेज नंबर 37 भी कर लेते हैं। ओके, so let's see what do we have in page number 37. In page number 37 there is a bit of work for us. It has been written that recognize the picture and fill in the blanks. Okay, so what we have to do, we have to fill the blanks which has been provided here in your 4 lines, and then we have to write a suitable word by seeing the picture. So the first picture, it tells you about a sun. ये पहला पिक्चर क्या बताती है? एक तस्वीर दिखाई है किसकी? सन की। तो सन के बारे में हम क्या जानते हैं? सबसे पहले सन अनोखा है, एक है, इसका दूसरा कोई एग्जाम्पल नहीं है। तो हम इसमें क्या यूज करेंगे? द किसी एक चीज को संबोधित करता है, तो यहाँ पे द सन इज बिग भी यूज कर सकते हैं, या फिर द सन इज येलो भी यूज कर सकते हैं, या फिर द सन इज ब्राइट भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे छोटा सेंटेंस बना रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे? बिग। राइट, अब हम लोग सेकेंड पिक्चर किसकी कहते हैं? मैंगो। तो यहाँ पे हम क्या से संबोधित करेंगे? द। यहाँ पे द लिखेंगे, THE, द। उसके बाद मैंगो, और इज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। इज क्या है? आपकी हेल्पिंग वर्ब। और क्योंकि पिछले पेज में हम लोगों ने लिखा था आम मीठा होता है, तो यहाँ भी वही लिखेंगे, मैंगो इज स्वीट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? Orange. This is the third picture of an orange. So what do we use here? The. Once again, we will write it the. So what is the taste of an orange? The orange is sour. Is your helping word. O is your noun. And this you write sour. S-O-U-R. Sour. Okay? So the orange is sour. नेक्स्ट क्या है? द मैन। द मैन, ये गाड़ी है, गाड़ी के अंदर क्या है? एक तस्वीर है एक आदमी की, और ये आदमी कौन है? ये एक गाड़ी में बैठा हुआ आदमी कोई भी हो सकता है, आपके पापा हो सकते हैं, आपके भैया हो सकते हैं, नहीं तो वो लोग किस में बैठ के गाड़ी चलाते हैं? गाड़ी के अंदर बैठ के गाड़ी चलाते हैं। सो द मैन इन अ कार। इन मतलब अंदर, ठीक है, और अ मतलब एक गाड़ी के अंदर एक आदमी है। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर क्या बता रहे हैं? फिश। फिश किस में है? डिश में, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फिश मतलब द फिश इन अ डिश। इन अ डिश, द फिश इन अ डिश। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट पिक्चर कैट की। राइट, तो यहाँ पे क्या करेंगे? आपको देख रही होगी द कैट। तो नेक्स्ट पिक्चर क्या है? द कैट की। तो यहाँ पे लिखेंगे द कैट इन अ मैट। कैट, यहाँ द लिखेंगे, इन अ मैट। मैट के अंदर ये कैट है, हम लोग ऑन भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन लिखा हुआ है।
is big. सूरज बड़ा है. The mango is sweet. मैंगो मीठा है. The orange is sour. जो ऑरेंज है, संतरा है, वो क्या है? वो खट्टा है. The man in a car. मैन कहाँ बैठ के गाड़ी चला रहा है? कार के अंदर. फिश कहाँ है? डिश के अंदर. डिश मतलब बर्तन. The fish in a dish. Okay. और लास्ट में क्या है? Cat in a man. तो ये तीन में हम लोग ने क्या यूज किया? प्रीपोजिशन. तीन क्या है? हम आपको आगे की क्लास में बताएंगे कि क्या है प्रीपोजिशन. और ये इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, यहाँ पे बस यही अंतर है. बाकी ये सन, ये मैंगो, ये ऑरेंज, ये मैन, ये फिश, ये कैट, ये सारे क्या है? नाउन. ये सब क्या है? नाउन है. ठीक है. और ये कार भी आपका नाउन है. मैथ भी आपका नाउन है. क्लियर? तो ये सब क्या है? ये बिग, ये स्वीट आपकी एडजेक्टिव है. तो बाद में जिस समय हम जो चीज पढ़ाएंगे आपको उसमें बताते जाएंगे. आज फिलहाल हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने ये सीखा कि हम सेंटेंस को किस तरह से फ्रेम करेंगे. राइट. अब हम छोटे छोटे सेंटेंस को अपने घर में फ्रेम करेंगे. आपको वर्ड लिस्ट मिली होगी. वर्ड लिस्ट से देखेंगे और उससे छोटे छोटे सेंटेंस फ्रेम करेंगे. जैसे कि नाइफ होगा. द नाइफ इज शार्प. नाइफ क्या है? बहुत शार्प ऑब्जेक्ट है. मैंगो इज स्वीट, है ना. डेस्क इज बिग ना. उसके बाद ब्लैक बोर्ड इज ब्लैक. तो इस तरह से द यूज करके हम कोई भी सेंटेंस को फ्रेम करेंगे. क्लियर? तो आज के लिए इतना ही. अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे.